We'll be discussing once you are able to diagnose Alzheimer's disease, how you are going to manage those patients. And this is, I think, an important aspect of Alzheimer's disease treatment and management. This is the natural history. So there is an early disease, there is a moderate disease, and then there is a severe disease. So this is, I think, for practical purposes, once you see a patient with Alzheimer's disease, you have to kind of identify that you are dealing with the early stage, or you are dealing with the moderate stage, or you are dealing with the severe stage, because that also has treatment implications. And once the disease progresses, then the disability and everything progresses. And at the end, after diagnosis of 10 years, most of the patients with Alzheimer's disease, they become severely disabled, or they they go and die. So you can also calculate their disease severity by kind of day-to-day activities, the functional impairment, and most of the time with the MMSE score or MOCA, or by your clinical examination, that you can tell that what kind of deficit this patient has. So in severe stages, they are unable to recognize themselves or family members. They are unable to take care of themselves. They become totally dependent. जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं जो totally dependent होते हैं, तो there is a point in Alzheimer's disease कि these patients become totally dependent. उनको feeding के लिए, bathing के लिए, कपड़े चेंज कराने पड़ते हैं, तो सारे के सारे काम करने पड़ते हैं. The goal of the treatment is कि we kind of slow down the progression of the disease. So that is the important thing. Now at this point, there are three types of treatments available. We'll discuss all three. Number one is the disease specific treatment. Number two is the symptomatic treatment, which will be partly discussed by Dr. Javed. And I think third and most is the family counseling. And this is a very important issue for all the doctors, that when you diagnose someone with Alzheimer's disease, don't start writing prescription. You have to explain to the family and their caregiver that's what is going to happen, and how long it's going to take, and how they are going to be taking care of their parents or their loved ones or the elder ones. So as far as the treatment is concerned, there are certain FDA approved treatment, which I'll tell you. There are unproven therapies. I think this is important for you to know कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें लोग जो दवाइयाँ दे रहे होते हैं मरीजों को कि ये हाफजे के लिए अच्छी हैं, but they have no proven role. So maybe you should be staying away from those unproven therapies. There is part of symptomatic treatment, and then there are comorbid conditions which comes with Alzheimer's disease, so you should know about it. Now the problem with all the FDA approved medications, there are only 4 medications which are FDA approved. None of the medication stops Alzheimer's disease from progression. So अगर किसी को Alzheimer's हो जाती है तो it is going to progress. तो इसलिए सबसे अहम बात यह है कि जितने भी लोग जो Alzheimer's के हों, if they are on medications, don't expect that they will improve. So there is not going to be any improvement to start with. सिर्फ होना यह है कि उनकी जो बीमारी की प्रोग्रेशन है वो स्लो डाउन हो जाएगी. वो जो उनको माइल्ड टू मॉडरेट जाने में 5 years लगते हैं और मॉडरेट टू सीवियर जाने में 5 years लगते हैं, तो उनको अगर आप दवाई नहीं देंगे तो दे विल गो फ्रॉम माइल्ड टू मॉडरेट इन 2 to 3 years, or moderate to severe in next 2 to 3 years. Now if you treat them, then they will go to that stage later. So that's why it's very important कि अगर आप उनको early stage में diagnose कर लें and you start them on treatment, so you can kind of slow down their progression from mild to moderate disease. So that is one thing कि अभी तक कोई ऐसी दुनिया में दवाई नहीं है, किसी ने अगर दरियाफ्त कर ली तो उसको नोबेल प्राइज मिल जाएगा, कि जो इसको प्रोग्रेस को रोक सके या उसको रिवर्स कर सके. इसको जानने इसलिए ज़रूरी है कि डोंट एक्सपेक्ट एनी इम्प्रूवमेंट. तो ये पहली चीज़ है कि जो आपको मरीज़ को और फैमिली को समझानी पड़ेगी, वरना वो मरीज कहेंगे सर कोई बेहतरी तो हुई नहीं. तो बेहतरी तो होनी भी नहीं है ना, पहले दिन से ही पता देना चाहिए. तो इसलिए ये सबसे अहम बात है. दूसरी बात ये है कि ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, तकरीबन समझ लो लाइफ लॉन्ग है. अनटिल पेशेंट्स बिकम टोटली बेड बाउंड और मतलब सीवियरली डिसेबल, उसके बाद दवाई देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इट हैज़ ऑलरेडी प्रोग्रेस्ड. लेकिन अदरवाइज इससे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, किसी को अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोज करते हैं तो इट्स 6-7 years 8 years ऑफ ट्रीटमेंट, और मे बी 10 years ऑफ ट्रीटमेंट अगर आप स्लो डाउन कर लेते तो दूसरी बात यह है कि हमेशा इट्स गोइंग टू बी ए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट. तीसरी बात यह है कि ज़ाहिर बिकॉज इट्स लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट and most of these patients who are elderly, they are not like earning, so you have to think cost effectively कि उनको कौन सी ऐसी दवाई शुरू कर सकें जो उनकी फैमिली अफोर्ड कर सके
और वो उनको लंबे अरसे तक वो दवाई दी जा सके। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो अल्जाइमर्स डिजीज़ की मैनेजमेंट में अहमियत रखती हैं। अब दुनिया में इसकी टोटल 4 दवाइयाँ हैं। अभी एक 5वीं भी आ गई है, विच इज़ FDA अप्रूव्ड, विच इज़ ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। वो अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, इट्स ए मंथली इंजेक्शन। लेकिन जो इसकी गोलियों वाली दवाइयाँ हैं चारों, जो पिछले तकरीबन 10-15 सालों से पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, तो वो चारों मेडिकेशंस पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और दे आर काइंड ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव। आप उनको शुरू कर सकते हैं मरीजों के अंदर, उनकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है बेशतर मेडिकेशंस की। तो उनमें सबसे पहली जो दवाई अल्जाइमर्स के अंदर आई थी वो डोनापाजिल थी, जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। और देयर आर मल्टीपल गुड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स शोइंग इट्स एफिकेसी। ये ज़्यादातर अर्ली अल्जाइमर्स में दी जाती है, यानी मॉडरेट वालों को नहीं देते, हम अर्ली स्टेज वालों को देते हैं। और इसकी डोज 5 मिलीग्राम शुरू होती है। तो वी स्टार्ट विद 5 मिलीग्राम एंड देन यू कैन गो टू 10 मिलीग्राम आफ्टर 4 to 6 weeks. और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ वेरी वेल टॉलरेटेड मेडिकेशन, इट वर्क्स प्रीटी वेल। तकरीबन 10-15% लोगों में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और साइड इफ़ेक्ट्स आर लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, मसल क्रैम्प्स। यूजुअली अगर आप थोड़ा स्लोली दवाई को शुरू करें और दें तो ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट इतना लोगों में नहीं होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर एबल टू टॉलरेट दिस मेडिकेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके बारे में वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और यू कैन स्टार्ट दिस मेडिकेशन टू ए लॉट ऑफ पेशेंट्स हु हैव वेरी अर्ली अल्जाइमर्स डिजीज। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अभी न्यूरोलॉजी क्लिनिक में हमारे पास ज़्यादातर अर्ली अल्जाइमर्स वाले नहीं जाते, तो ये ज़्यादातर फैमिली फिजिशियंस के पास जाते हैं या किसी के पास भी नहीं जाते। तो इसलिए इसको जो है ना, ये एक इशू है जो हम चाहते हैं, जो आज वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाया जा रहा है, उसका मकसद भी है कि लोगों में अवेयरनेस आ जाए ताकि लोग अर्ली स्टेज में इसको आइडेंटिफाई करके ट्रीट करना शुरू करें। दूसरी जो मेडिकेशन है विच इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन पाकिस्तान, इसको रिवेस्टिगमीन। रिवेस्टिगमीन के बारे में भी बहुत सारे ट्रायल्स हैं, पाकिस्तान में भी इसके ट्रायल्स हो चुके हैं। और ये 6 मिलीग्राम और 12 मिलीग्राम इसकी डोज होती है। एक्चुअली इसकी 3 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, तो यू कैन स्टार्ट विथ 3 मिलीग्राम डेली एंड गो अप टू 12 मिलीग्राम पर डे इन 2 डिवाइडेड डोजेस। तो 6 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे आप इसको दे सकते हैं। हमारे पास 3 मिलीग्राम से कम की टैबलेट नहीं आती है, तो बाज़ औक़ात आप इसको इवन हाफ टैबलेट से भी शुरू कर सकते हैं। 1.5 मिलीग्राम दें एट नाइट, और फिर आहिस्ता इसको ओवर 3 मंथ्स आप इसको 6 मिलीग्राम या 12 मिलीग्राम तक लेके जा सकते हैं। और इसके साइड इफेक्ट में एक वेट लॉस का एक प्रॉब्लम है, जो बाज़ मरीजों में होता है और बहुत सारों में नहीं भी होता, लेकिन अगर किसी में हो जाए तो दवा डिसकंटिन्यू करने से वो बेहतर हो जाता है। रिवेस्टिगमीन ऑल्सो इज़ अवेलेबल इन ट्रांसडर्मल पैच। सो जो लोग ओरल जिनको दवाइयों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी दवाइयाँ ले रहे होते हैं, वो मजीद लेना चाहते हैं, या जिनको GI साइड इफेक्ट हो रहे हैं, उनमें ट्रांसडर्मल पैच यूज़ कर सकते हैं। वो 9.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का पैच आता है, अभी वैसे 13.3 का भी आने लगा है, विच इज़ हायर डोज ऑफ पैच। और वो 1 डे होता है, 24 आवर्स के लिए होता है। पैच से अगर ज़्यादातर तो पैच की साइड चेंज करते रहनी चाहिए, और बाज़ औक़ात पैच से जो है रैश होता है, लेकिन ज़्यादातर वो रैश नहीं होता है। इट्स ए वेल टॉलरेटेड मेडिकेशन। तो दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन पाकिस्तान। सो ये रिवेस्टिगमीन इज़ ऑल्सो माइल्ड टू मॉडरेट के लिए पाकिस्तान में अवेलेबल है, और इसका लोकल वर्जन भी अवेलेबल है। मतलब यानी एक तो वर्जन नोवार्टिस का आता है और जो इम्पोर्टेड है, और दूसरा जो पाकिस्तान का में अब जो बने हुए कंपनीज हैं वो भी इसको बना रही हैं, तो ये अवेलेबल है। लेकिन रिवेस्टिगमीन पैच जो है वो पाकिस्तान में अभी सिर्फ इम्पोर्टेड अवेलेबल है। द थर्ड मेडिकेशन है विच इज़ ऑल्सो FDA अप्रूव्ड इज गैलेंटामीन, एंड दिस ऑल्सो हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू ए वेरी गुड ट्रायल्स। एक्चुअली इट इज़ वन ऑफ ए वेरी गुड वेल टॉलरेटेड मेडिकेशंस, और इसके बारे में भी बहुत अच्छी स्टडीज़ हैं। ख़ास तौर पे अल्जाइमर्स और वेस्कुलर डिमेंशिया के जो कॉम्बिनेशन वाले पेशेंट्स होते हैं, इसमें इसका काफ़ी अच्छा रोल है। और ये दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन लाइक 6-8 मिलीग्राम टैबलेट्स एंड 16 मिलीग्राम टैबलेट्स एंड 12 मिलीग्राम टैबलेट्स। सो यू कैन स्टार्ट देम विद 6 मिलीग्राम और 8 मिलीग्राम एंड गो ऑल द वे अप टू 24 मिलीग्राम। सो दिस मेडिकेशन इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन पाकिस्तान, एंड इट हैज़ सम साइड इफेक्ट प्रोफाइल जिस तरह के और दवाइयों का होता है, लेकिन दे आर मोस्टली GI side effects, and they are well tolerated, and usually happens when you kind of move forward very aggressively. So if you just go very slowly, start with 6 and go all the way to 24 over 3 to 5 months or 6 months period, then these medications are usually well tolerated. और काफ़ी अल्जाइमर्स के पेशेंट जो मॉडरेट स्टेज में होते हैं, इनकी प्रोग्रेशन को काफ़ी स्लो डाउन कर देती है दवाई। The fourth medication, which is called memantine, which is a different mechanism of action, is NMDA receptor antagonist.
ये भी पाकिस्तान में अवेलेबल है काफ़ी अरसे से, और इसके बहुत सारे लोकल वर्जन्स भी अवेलेबल है। मतलब इसकी एक तो ओरिजिनल वर्जन है जो बिक्सा के नाम से मिलती है, लेकिन इसके लोकल वर्जन भी पाकिस्तान में मेरे ख्याल कुछ 7-8 कंपनियां इसको बना रही हैं, तो उसकी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर्मुलेशंस भी अवेलेबल हैं। और दिस इज ऑफ प्रूफ फॉर मॉडरेट टू सीवियर अल्जाइमर्स डिजीज। तो सीवियर अल्जाइमर्स में वाहिद जो दवाई जो FDA अप्रूव्ड है दिस इज मेमेंटीन। लेकिन अगर मॉडरेट टू सीवियर अल्जाइमर्स हो तो उसके लिए आप यू कैन स्टार्ट विद गैलेंटामीन, रिवेस्टिगमीन और मेमेंटीन। सो दीज आर दी 3 ऑप्शंस। सो इसको भी अगेन इट्स ए 10 milligram tablet and you can start slow and go all the way to 10 milligram twice a day। इसमें भी थोड़ा साइड इफेक्ट में GI साइड इफेक्ट्स होते हैं बाज़ औक़ात जो प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन स्टिल अगर इफ़ यू स्टार्ट स्लोली एंड बिल्ड अप ग्रेजुअली देन यूजुअली यू डोंट गेट मच ऑफ साइड इफेक्ट्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स टॉलरेट दिस मेडिकेशन वेरी वेल। तो हमारे पास कई मरीज ऐसे हैं जो 7-8 साल से 10 साल से दवाई ले रहे हैं एंड दे हैव नॉट प्रोग्रेस्ड इनटू सीवियर और डिसेबलिंग अल्जाइमर्स डिजीज। तो काफ़ी मतलब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेडिकेशंस। अच्छा, अब उसके बाद हेड टू हेड ट्रायल्स भी हुए हैं कई सारे। तो मिसाल के तौर पे डोनापिजिल और गैलेंटामीन के हेड टू हेड ट्रायल हो चुके हैं, जिसमें ये पता चला कि गैलेंटामीन इज ए बेटर ड्रग एज कम्पेयर टू डोनापिजिल इन टर्म्स ऑफ एफिकेसी एंड लेस साइड इफेक्ट प्रोफाइल। सो यू कैन ऑल्सो स्विच पेशेंट फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर वन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पेशेंट डोनापिजिल पे शुरू किया एंड यू थिंक दैट स्टिल पेशेंट इज प्रोग्रेसिंग fast, then you can switch them from donepezil to galantamine. That's a better medication. Or the other option is that अगर आपने क्लिनिक में देखा और मरीज को आपको लग रहा है कि पेशेंट इज मोर देन अर्ली अल्जाइमर्स डिजीज, then you can directly start them on galantamine. इसी तरह डोनेपिजिल और रिवेस्टिगमीन के भी कंपैरिजन ट्रायल हो सके हैं। अगेन रिवेस्टिगमीन इज ए बेटर टॉलरेटेड एंड बेटर मोर एफिकेशियस एज कंपेयर टू डोनेपिजिल। तो बहुत ही अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स हो जिसमें बहुत माइल्ड सिम्टम्स हो तो डोनेपिजिल इज गुड। अगर थोड़े ज़्यादा सिम्टम्स हो या मॉडरेट हो तो फिर आपके पास रिवेस्टिगमीन या गैलेंटामीन का ऑप्शन ज़्यादा है। क्योंकि हमारे पास बहुत कम मरीज आते हैं अर्ली वाले, तो हम लोग डोनेपिजिल कम यूज़ करते हैं, लेकिन काफ़ी दुनिया के और मुल्कों में डोनेपिजिल काफ़ी यूज़ होती है अगर वो अर्ली स्टेज के अंदर मरीज आ जाए। एक दूसरी बात और भी है कि यू कैन ऑल्सो कंबाइन मेडिकेशंस। सो क्या होता है कि अगर पेशेंट मिसाल के तौर पे इज वन ऑफ द एंटीकोलिनर्जिक्स पर है, तो एंटीकोलिनर्जिक्स 3 है हमारे पास, डोनेपिजिल है, रिवेस्टिगमीन है और गैलेंटामीन है। इन तीनों में से किसी एक को आप कंबाइन कर सकते हैं मेमेंटीन के साथ। उन तीनों को आपस में कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि दे हैव द सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो डोनेपिजिल के साथ रिवेस्टिगमीन को नहीं मिला सकते या गैलेंटामीन को नहीं मिला सकते, लेकिन अगर आपकी ट्रीटमेंट के बावजूद पेशेंट इज प्रोग्रेसिंग फास्टर देन इट इज सपोज्ड टू बी, then you can do a combined therapy which we use in moderate to severe Alzheimer's disease patients. So उसके अंदर हम एक एंटीकोलिनर्जिक का कॉम्बिनेशन देते हैं, इधर रिवेस्टिगमीन और गैलेंटामीन विद मेमेंटीन। So it has proven to be more effective. So there is evidence कि अगर आप combined therapy करें तो it is more effective. So there is no point in combining 3 एंटीकोलिनर्जिक्स को कंबाइन करने का फायदा नहीं, लेकिन वन ऑफ द एंटीकोलिनर्जिक्स को NMDA रिसेप्टर के साथ कंबाइन करने में फ़ायदा है। अब आते हैं बहुत सारी अनप्रूवन थेरेपीज़ की तरफ जो पाकिस्तान में चल रही हैं, आपको पता है, और उसमें बहुत सारे न्यूरोटॉनिक्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे फिर हमारे ज़माने में जब खमीरे इस्तेमाल होते थे, लोग कहते हैं खमीरे इस्तेमाल करने से हाफजा अच्छा हो जाता है और वो जो है ना अल्जाइमर्स में यूज़ होते हैं। इसी तरह बहुत सारे मेडिकल साइट पे बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं जिनके बारे में कोई इतनी क्लिनिकल ट्रायल से प्रूव नहीं है। विटामिन ई के बारे में काफ़ी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जिससे क्लियरली है कि इतना कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में काफ़ी ट्रायल्स हुए हैं कि जिससे इतना कोई एडवांटेज नहीं है। इसी तरह जिंको जो एक चाइनीज़ हर्बल प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान में काफ़ी यूज़ होती है, दुनिया में तो काफ़ी यूज़ होती है। इट्स ए हर्बल प्रोडक्ट, इट्स ए न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट एक्चुअली, इट्स नॉट ए मेडिकेशन। इसी तरह जिनसेंग, इसी तरह पाकिस्तान में हाइड्रोजीन और न्यूट्रोपिल और इस तरह की दवाइयाँ जो मेमोरी इन्हेंसर के तौर पे यूज़ होती हैं, actually they have no role in Alzheimer's disease. So there is no point using any one of these medications in Alzheimer's disease. इसी तरह there is no role of vitamin supplementation in Alzheimer's disease. मतलब none of the vitamin supplementation decreases progression of Alzheimer's disease. So vitamin supplementation you can give for other reasons, but for Alzheimer's disease there is no role of any of the vitamins for that. उसके अलावा कई ट्रायल्स हो चुके हैं मुख्तलिफ दवाओं के ऊपर। तो मुख्तलिफ तरह के नॉन स्टेरॉइड्स पे ट्रायल्स हुए हैं, स्टीरॉइड्स पे हुए हैं, ईस्ट्रोजन प्लस
मेट्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन पे हुए, तो अब इनमें से किसी दवाई का कोई रोल नहीं है। जो एक अहम इशू जो व्हाट वी हैव लर्न इन द लास्ट 20 years कि ऑल पेशेंट्स हु हैव अल्जाइमर्स डिजीज दे आल्सो हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग वेस्कुलर कंपोनेंट, क्योंकि सारे लोग 60 साल से ज़्यादा के होते हैं और सब में मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की चीज़ें। तो 60% पेशेंट्स हु हैव अल्जाइमर्स डिजीज इस वक्त दुनिया में, उनमें से 60% को वेस्कुलर रिस्क फैक्टर्स पाए जाते हैं। और अब ये बात है कि काफ़ी सारी स्टडीज हुई हैं जिन्होंने शो किया है कि इफ़ यू आर एबल टू कंट्रोल दिस वेस्कुलर रिस्क फैक्टर्स in addition to Alzheimer's disease treatment, you can slow down the progression of Alzheimer's disease treatment. तो अभी उसमें सेलेस्ट्राजोल की एक स्टडी आई है विच शोज कि आप अगर एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन यूज करें तो उसका एक रोल है, और वो आल्सो वेजोडाइलेटर भी है। लेकिन दूसरी अहम तरीन चीज ये है कि अल्जाइमर्स के पेशेंट में यू हैव टू एग्रेसिवली कंट्रोल वेस्कुलर रिस्क फैक्टर्स। मतलब इफ यू वांट कि आप सिर्फ अल्जाइमर्स की ट्रीटमेंट से मसला हल हो जाए तो हो सकता है हल हो जाए, लेकिन अगर वेस्कुलर रिस्क फैक्टर्स काफ़ी स्ट्रांग होंगे तो वो मसला हल नहीं होगा। तो इसीलिए यू हैव टू एग्रेसिवली कंट्रोल ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, वेस्कुलर रिस्क फैक्टर्स। इसी तरह अगर वो टोबैको यूज़ करते हैं तो उनको, और टोबैको एब्यूज़ को हमें रोकना पड़ेगा, स्मोकिंग करते हैं या और जो भी गुटखा इस्तेमाल करते हैं नस्वार, तो उन रिस्क फैक्टर्स को भी हमें कंट्रोल करना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स आर रिलेटेड टू बिहेवियर एंड दे रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। एक बात ध्यान में रखिएगा कि हमारे पाकिस्तान में अल्जाइमर्स के जो पेशेंट्स होते हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स उनको लेके आते हैं ना, तो दे आर नॉट वरीड अबाउट देयर पेरेंट्स मेमोरीज। तो उनको ज़्यादा मेमोरी से इतनी गरज नहीं होती है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बिहेवियरल प्रॉब्लम की वजह से, विच आर पार्ट ऑफ द अल्जाइमर्स। तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो हमारे पास वो आते हैं कि जो मॉडरेट टू सीवियर अल्जाइमर्स होते हैं और उनको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स डेवलप हो गए होते हैं, तो वो बेसिकली उन प्रॉब्लम्स की वजह से पास आते हैं, देन वी डायग्नोज देम विद अल्जाइमर्स डिजीज। और लेकिन अल्जाइमर डिजीज को ट्रीट करने से उनके बिहेवियरल प्रॉब्लम भी काफ़ी बेहतर हो जाते हैं, बट समटाइम यू हैव टू गिव मेडिकेशंस फॉर द बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। इसमें 2-3 बातों को और ध्यान में रखिएगा कि एक तो वो साइकेट्रिक इशूज और ट्रीटमेंट तो बताएंगे। एल्डरली पॉपुलेशन होती है ना, 50, 60, 70 वाले, इन लोगों में ना बिहेवियरल इशूज की और भी कई वजूहत होती हैं अदर देन अल्जाइमर्स। सो डोंट ऑलवेज ब्लेम ऑन अल्जाइमर्स। बाज़ औक़ात सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ही एक वजह होती है, बाज़ औक़ात जो है वो कोई मेडिकल इलनेस हो जाती है, बाज़ औक़ात ये एंटी एलर्जी का यूज़ होता है। डॉक्टर नाला कहती है ना एंटी कोलिनर्जिक यूज़ करने चाहिए। एंटी हिस्टामिन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी कोलिनर्जिक। आप उनको कोई भी दवाई दें एलर्जी की, इस तरह की, उससे काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। बाज़ औक़ात सिर्फ इन्वायरमेंट चेंज करने से काफ़ी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि अम्मा अब्बा होते हैं, उनके 4 बेटे होते हैं, हर महीने एक घर जा रहे होते हैं, तो उससे भी उनको काफ़ी अल्जाइमर्स उनका बिहेवियरल प्रॉब्लम प्रेसिपिटेट कर जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि काफ़ी अल्जाइमर के पेशेंट में ना कोमॉर्बिड प्रॉब्लम कंडीशंस होती हैं जिसको आपको आइडेंटिफाई करके ट्रीट करना चाहिए। मिसाल के तौर पे विटामिन B12 डिफिशियंसी इज़ वेरी कॉमन। विटामिन B12 डिफिशियंसी हमारी पॉपुलेशन में इज़ अबाउट 12%, लेकिन हमारी जो एल्डरली पॉपुलेशन है विच इज़ मोर देन 60, इट्स अबाउट 25-30%। उसकी वजह कि वो उनके विटामिन B12 एब्जॉर्ब भी नहीं होते उनके आंतों से ना, उनको आपको विटामिन B12 रिप्लेस करना चाहिए, उससे उनकी काफ़ी सिम्टम में बेहतरी आ जाती है। दूसरे विटामिन D डिफिशियंसी इज़ वेरी कॉमन। इस एज ग्रुप में हमने स्टडी किया था, तकरीबन 70-80% लोगों को विटामिन D डिफिशियंसी होती है, जो उनके अल्जाइमर्स के और बिहेवियर के सिम्टम्स को भी काफ़ी बेहतर इम्प्रूव करती है। दूसरी बात है कि तकरीबन 10-20% ऑफ अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट्स में पार्किंसोनियन सिम्टम्स होते हैं, पार्किंसंस डिजीज होती है, जिसकी वजह से उनकी गेट और इस तरह की चीज़ें, उनको भी आपको आइडेंटिफाई करके ट्रीट करना चाहिए। तीसरी बात यह कि तमाम अल्जाइमर्स के पेशेंट चूंकि 60+ के होते हैं, तो उनमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, उनमें से काफ़ी को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है, वो पेन मेडिकेशन भी ले रहे होते हैं। आप सिर्फ उनकी अल्जाइमर्स की दवाइयों को नहीं देखें, आप उनकी तमाम दवाइयों को देखेंगे वो क्या ले रहे हैं, और मैक्सिमम जितनी आप दवाएं डिसकंटिन्यू कर सकते हैं उनकी करें, क्योंकि अदरवाइज दे आर गोइंग टू प्रेसिपिटेट द प्रॉब्लम। स्पेशली उनको ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स नहीं देनी चाहिए, उनको ज़्यादा डिप्रेशन की दवाइयाँ ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस आल्सो हैव ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दीज पेशेंट्स मेडिकेशन। खासतौर पे जो एलर्जी की दवाइयाँ होती हैं, इस तरह की दवाइयों का काफ़ी असर होता है, और ये मौसमियाती मेडिकेशंस का भी काफ़ी असर होता है। तो वी कम टू द लास्ट पॉइंट कि आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन अल्जाइमर्स डिजीज, कि आपको जब डायग्नोज कर लें आप अल्जाइमर्स को, तो आप फैमिली को, जिनको आगे जाके मरीज को केयर करना है, आप उनको पूरी तरह इस बीमारी के में बताइए कि दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम और दिस इज गोइंग टू स्टे, हाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट।
और तकरीबन समझ लें कि जिस तरह हम तो इस तरह बताते हैं कि जिस तरह आपके वालिदैन ने जब आप छोटे थे आपकी परवरिश की थी, समझ लें हो सकता है ऐसा पॉइंट आ जाए कि आपको उनको उस तरह भी करना पड़े, तो आप जहनी तौर पर उसके लिए तैयार हैं। लेकिन पूरा कोर्स आपको बताना चाहिए, फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस क्या बतानी चाहिए, ड्रग्स क्या इस्तेमाल होंगी, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, उसकी कॉस्ट क्या होगी, साइड इफेक्ट क्या होगा, मल्टी ड्रग यूज से किस तरह बचना है, इन्वायरमेंटल चेंजेस को किस तरह आपको एड्रेस करना है, फिर उनके और जो लिविंग विल वाले मसले हैं ना, इनहेरिटेंस के मसले होते हैं, विरासत के मसले होते हैं। तो अगर आपको कोई पेशेंट जिसको आप अल्जाइमर डायग्नोज कर रहे हैं और यू नो कि द पेशेंट इज गोइंग टू बी मॉडरेट टू सीवियर अल्जाइमर्स, तो आपको उनको बता देना चाहिए कि अगर आपको कोई इस तरह की विल की चीज़ें करनी है तो आप अभी कर लें, क्योंकि बाद में तो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। इसी तरह उनकी ड्राइविंग के बारे में भी इसके हवाले से पाकिस्तान में इतनी कानून साजी नहीं है, या फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको काउंसिल करनी चाहिए फैमिली को। उसके ज़रिए आपको पेशेंट को फिर आगे फ्यूचर में पूरी फैमिली के साथ मैनेज करने में आसानी होगी। दूसरी बात है कि जो अल्जाइमर के पेशेंट की मैनेजमेंट है ना, वो बेसिकली आपसे तो फैमिली को करनी है। और दुनिया में ये बात पता चली है कि एक्चुअली अल्जाइमर्स के पेशेंट में इतना डिप्रेशन नहीं होता है जितना उनके केयर गिवर्स में डिप्रेशन होता है, क्योंकि उसकी वजह ये कि जाहिर है इट्स ए फुल टाइम जॉब। घर के अंदर अगर कोई बुजुर्ग है तो इट्स ए फुल टाइम जॉब के पूरे घर को उनको देखभाल करना पड़ेगा, और वो ज़ाहिर बेहतर नहीं होगा बल्कि वर्सी होता चला जाएगा। तो इस हवाले से काफ़ी काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो अभी इन कंक्लूजन देयर आर नाउ मेनी ड्रग्स विच कैन स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज। और मतलब इस वक्त इससे कंसेंसस है कि जितने अल्जाइमर्स के पेशेंट हैं दे शुड बी ऑन वन ऑफ दोज मेडिकेशंस, ताकि एटलीस्ट हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर जितना कर सकते हैं करें, और उनकी बीमारी को जितना स्लो डाउन हम कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करें। तो हमें जुडिशियस यूज़ करना चाहिए। दवाएं हमें सिर्फ अल्जाइमर्स के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। देयर इज नो मेमोरी इनहेंसर। अगर कोई मेरे पास आता है कि जी मेरा हाफजा कमज़ोर हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि मुझे आप कोई दवाई ऐसी दे जिससे मेरा हाफजा बेहतर हो जाए, तो मैं तो उससे कहता हूँ रोज़ाना वॉक करो 1 घंटा, उससे हो सकता है ज़्यादा बेहतर हो जाए तुम्हारा हाफजा ना। तो लेकिन ज़्यादा मेमोरी इन्हेंस करने की दवाइयाँ अभी दुनिया में नहीं है कि जिससे आपका हाफजा बेहतर हो जाए। एक्सरसाइज आई थिंक इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। दूसरी बात है कि अनप्रूवन और इनफेक्टिव थेरेपीज नहीं दें, अनजुडिशियस यूज़ ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों को बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको मेरा ख्याल है किसी साइकेट्रिस्ट के पास आपको एक लॉन्ग टर्म एक केयर के लिए रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट जो अल्जाइमर्स के होते हैं जिनको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं दे नीड ए लॉन्ग टर्म साइकेट्रिक केयर। दूसरी बात यह है कि एक और चीज़ जो हम कोशिश करते हैं कि साइकेट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट के दरमियान एक आपस में कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि हम कोई दवाई दे रहे हैं तो वो चेंज कर रहे हैं, वो दवाई दे रहे हैं तो उससे अल्जाइमर्स वर्स हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं कि जिससे अल्जाइमर्स के सिम्टम और वर्स हो जाते हैं। तो इस हवाले से एक साइकेट्री और न्यूरोलॉजी का भी कम्युनिकेशन होना चाहिए, और ड्रग इंटरेक्शंस को खास तौर पे देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मेडिकेशन मिल रही होती हैं। तो मैं कहता हूँ कि अल्जाइमर का कोई भी पेशेंट आप देखें तो उसकी तमाम ड्रग्स को रिव्यू करें, हर एक की ज़रूरत को देखें, और जो जो ज़रूरी नहीं हो उन सबको आप रोकने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।